Hello students, we are doing chapter 6 of NCERT, that is application of derivatives, and we are into the important question sections. In this session, we'll be doing case studies related to this chapter. We have already seen the weightage of this chapter. We know now this chapter is offering 9 marks out of 80, and one case study is there which is 4 marks. So we'll have a look at the case study in this particular session. So let's start with the first case study. All the case studies are basically, what you can say, just what we have done already in maxima minima, a little twisted to set into the case study format. This is this year's sample paper question. So let's see. An architect designs a building for a multinational company. The floor consists of a rectangular region with semicircular ends having a perimeter of 200 meters as shown below. You can see the figure is given to us. Now, before I start with this, I will be telling you that there are 5 parts in it. Don't make a mistake of attempting all the 5 parts, because this is the 4-marker question and you have to attempt only 4 parts. You can choose, pick and choose among the 5 parts which you want to attempt. So you have to attempt only 4 parts. Don't make the mistake कि एक आपका गलत हो गया. तो in case यदि ऐसा होता है, then board examiner will check only the first 4 parts. The 5th part will not be checked. So even if you have done the 5th part right and 4 में से कोई एक गलत कर देते हैं, तो आपका even that also 5th part check नहीं होगा. So you pick and choose. अभी 4 करते हैं तो those 4 parts will be checked. So make a wise decision here. Fine. So moving on to this, we have been given a figure और हमें इस information पे basis पे 5 parts देखा. मैंने पांचों के पांचों parts solve किए. तो एक part देखेंगे, उसको solve करेंगे, फिर दूसरा part देखेंगे, फिर उसको solve करेंगे, and so on. तो क्या दे रखा है? The length and the breadth of the rectangular region is given to us as x and y. We have to find a relation between the variables. 4 options are given to us. Fine. So let's start with the solution of this part. I have just see the figure. Figure बहुत important है, आपके आंखों के सामने होना चाहिए. So मैंने ये figure आपको दिखा दिया कि इस rectangular region का length जो है that is x and breadth है y. तो इससे आपको क्या समझ में आ रहा है? This radius of this semicircular region will be y by 2. Diameter हो गया y, so radius हो गया y by 2. तो सबसे पहली चीज हमने ये देख लिया. Total perimeter of the 4 is 200. तो इसमें क्या करेंगे हम? 2 into circumference of 2 semicircles है, मतलब circumference of a circle भी आप कर सकते हो, equally fine. Plus ये and this. Perimeter is always about the outer boundary, so don't go with this part. y को add मत करिएगा, ठीक है? So it is only 2x plus 2 into the circumference of semicircle, which will be equals to 200, which is given to us. So circumference of semicircle is pi into r होता है. r की वैल्यू y by 2 है और यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये दोनों कट जाएगा, तो आ जाएगा y pi into y. और यहाँ पे 2x तो पहले से हमने सोच के रखा था, तो देख लिया था हमने. So total answer we get as pi y plus 2x is equals to 200, which is option B. Fine. So इस तरह से हमने एक पार्ट को सॉल्व कर लिया. ये चीज आप नॉर्मली सॉल्व करते हो जब आप मैक्सिमा मिनिमा के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हो, तो ये चीज तो आप करते ही हो, बट इसको उन्होंने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया. सो नथिंग टू वरी अबाउट. इफ यू नो द कॉन्सेप्ट, इफ यू नो हाउ टू सॉल्व इट, नथिंग टू वरी अबाउट. कुछ भी डिफिकल्ट, कुछ भी आउट ऑफ द ये नहीं सोचना है आपको, आउट ऑफ द बॉक्स नहीं सोचना है. सिंपल जैसे आप प्रोसीड करते हो वैसे ही करेंगे. मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट. नेक्स्ट पार्ट में क्या दे रखा है? एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर रीजन, जिसको हमने क्या नाम दे रखा है? ए. उसकी एरिया हम एक्सप्रेस कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ फंक्शन ऑफ एक्स. सिर्फ एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर रीजन देख रहे हैं. तो लेट्स सी. आपको मैंने फिगर हमेशा दे रखा है सो दैट यू कैन एनालाइज दिस. एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर रीजन क्या हो जाएगा? लेंथ इनटू ब्रेड्थ, जिसकी वैल्यू x इनटू y है, और y की वैल्यू हमने निकाल ली थी. y वाज व्हाट? याद है आपको? पाई y प्लस 2x इक्वल्स टू 200 था. तो आप पाई निकाल लो यहाँ से.
क्या हो जाएगा 200 माइनस 2x डिवाइडेड बाई y, ये हो गया। देखो y की वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट कर दी, 1 से निकाल के जो पीछे वाले पार्ट में करा था तो वो कॉमन दिख रहा था तो 2 निकाल दिया। सो और x को अंदर कर दिया। क्यों? क्योंकि ये फॉर्मेट ऑफ द क्वेश्चन में आपको देखना पड़ेगा किस फॉर्म में आपका आंसर दे रखा है। सो इस फॉर्म में दे रखा था तो ये ए पार्ट था जो इसका करेक्ट आंसर था। सो 2 बाई पाई 100x माइनस x स्क्वायर इज द करेक्ट आंसर फॉर ए, एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर रीजन। अब नेक्स्ट वाले पे चलते हैं, दैट इज द थर्ड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए निकालना है तो मैक्सिमाइज करना है। मैक्सिमाइज के लिए आपको मैक्सिमा मिनिमा का कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा। डिफरेंशिएट करिए ए को, फिर उसको इक्वल टू 0 पुट करिए, फिर उससे आपको वेरिएबल की वैल्यू मिल जाएगी, उसको आप डबल डिफरेंशिएट करके उसमें पुट करके देखिए आपका पॉजिटिव आता है कि नेगेटिव आता है। यदि नेगेटिव आता है देन दैट पॉइंट इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, और पॉजिटिव आएगा तो मिनिमम। सो लेट्स डू दिस क्वेश्चन। तो क्या किया, ए की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी थी, उसको हमने डिफरेंशिएट कर दिया। ए की वैल्यू वाज गिवन एज 2 बाई पाई 100x, so pi 100x minus x square. So we have done that. So dA by dx equals to 0 put kar diya, and we got the final answer as 2 by pi 100 meters. Now we'll double differentiate this and we got x double differentiate करके हमारा -2 by pi आ रहा है, which is less than 0. So A is maximum at x equals to 50 मीटर्स पे x की वैल्यू मैक्सिमम आ गई। अब मैक्सिमम एरिया निकालना है, तो एरिया के जो फॉर्मूला था, एरिया जो हमने निकाला था इक्वेशन, उसमें x की जगह 50 डाल देंगे। फाइन, so let's do that. x की जगह 50 डाल दी, so we got the final answer. This is 5000 minus 25, sorry 500 minus 2500. So we got the final answer as 5000 by pi. इसमें ये this is 5000 minus 25 नहीं, this, so this will be 25 into 2, 5000 by pi meter square. So the answer option was C. Okay बेटो, so moving on to the next part. काफी लंबा है ये क्वेश्चन, so अब next part पे चलते हैं, that is fourth part. The CEO of the multinational company is interested in maximizing the area of the whole floor including the semicircular ends. वो पूरे फ्लोर की एरिया को मैक्सिमाइज करा था, हमने सिर्फ अभी रेक्टेंगुलर रीजन को देखा है। तो फॉर दिस टू हैपन द वैल्यू ऑफ ए शुड बी ऑप्शंस दे रखे हैं। तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, पूरा एरिया ऑफ द फ्लोर, फिर उसको मैक्सिमाइज करना पड़ेगा and let's see कि उसका वैल्यू क्या आता है। So we'll start with finding out the area of the whole floor. तो area of the rectangle was xy and the दो आपके क्या था, दो सेमी सर्कल्स थे, दे मेक फुल सर्कल, दैट इज पाई आर स्क्वायर, आर की वैल्यू y by 2 डाल दीजिए, सो ये आ गया। अब यू हैव टू कन्वर्ट दिस इनटू अ सिंगल वेरिएबल, सो y को आप एलिमिनेट कर देंगे। सो बेटो क्या मिलेगा इसमें, y की जगह आपने 200 minus 2x divided by pi डाल दिया। whatever you can take out common, do that and we get the final answer. So यहाँ से 2 कॉमन निकल रहा है, so यहाँ पे 2 by pi हो जाएगा, यहाँ पे 4 कॉमन निकल रहा है तो नीचे वाला 4 कट जाएगा और ये पाई स्क्वायर हो जाएगा, तो एक पाई इससे कट गया। So I got the final answer as 2 by pi into 100x minus x square plus 1 by pi 100 minus x का whole square. Now इसको हम क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट कर देंगे विथ रिस्पेक्ट टू x which you have done. So 2 by pi तो वैसे ही रह गया, 100 minus 2x आ गया, और यहाँ पे इसको करा तो पहले स्क्वायर फंक्शन को किया तो 2 into 100 minus x आया, फिर माइनस x को किया तो माइनस x किया, पूरी तरह से कंपाइल कर लिया। 2 by pi कॉमन था तो उसे निकाल दिया, पूरी तरह से कंपाइल किया तो 100 और 100 कैंसिल हो गया। सो वी गॉट द फाइनल आंसर एज -2 by pi x. दिस इज फर्स्ट डेरिवेटिव, इसको हमने इक्वेट किया 0 के साथ, सो आ गया वैल्यू x इक्वल्स टू
0 आ गया। फाइन, डबल डिफरेंशिएट किया बेटा तो नेगेटिव आ गया, सो मैक्सिमा हो गया एट x इक्वल्स टू 0। फाइन, तो ऑप्शन क्या आ जाएगा, जब हम इस पूरे एरिया को, होल एरिया को, कंबाइंड एरिया को मैक्सिमाइज कर रहे हैं, तो ये हो गया, आंसर आ गया ए। फाइन, सो वी गॉट द फाइनल आंसर। नाउ मूविंग ऑन टू द fifth part, that was the extra area generated। जो फर्स्ट पार्ट में था, फर्स्ट पार्ट में हमने क्या किया था, 5000 बाई पाई था। नेक्स्ट पार्ट में हमें ये करना है, जो एक्स्ट्रा एरिया जनरेटेड इफ द होल फ्लोर इज मैक्सिमाइज्ड। ठीक है, एक्स्ट्रा एरिया कितना जनरेट हो रहा है जब हम होल एरिया को मैक्सिमाइज कर रहे हैं। 4 ऑप्शंस दिया है, सो देखते हैं कि उसके लिए पहले वाले पार्ट की तो हमने एरिया निकाल ली थी, नेक्स्ट वाले पार्ट की मैक्सिमम एरिया हमें निकालना पड़ेगा। x इक्वल्स टू 0 पुट कर देंगे तो नेक्स्ट पार्ट का मैक्सिमम एरिया, दैट इज कंबाइंड एरिया जो था, दैट विल बी 10,000 पाई मीटर स्क्वायर। फर्स्ट वाले पार्ट का था 5000, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्ट करने के बाद क्या आ जाएगा, 5000 बाई पाई मीटर स्क्वायर। सो फाइनल आंसर आपका बी वाला पोर्शन आ गया। If you feel you are inconfident or little less confident with the last part, तो इसको छोड़ दीजिए। Fine. So choose, pick and choose out of the 5 parts। 4 parts को चूज करिए और उसी को सॉल्व करिए। Fine, got it? So इस तरह से देखा आपने कितना इजी था, सिंपल था, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं था। जो मैक्सिमा मिनिमा आप कर रहे थे उसको केस स्टडी फॉर्मेट में हमने थोड़ा सेट कर दिया एंड वी गॉट आवर फाइनल थिंग।